اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بزم کے صدر محترم عبدالجلیل انصاری صاحب، مہمان خاص ایڈوکیٹ نیاز مومن سر، رفیع انصاری سر اور شمیم اقبال مومن صاحب، مشتاق رضا بولنشکر سر، غلام نبی مومن سر اور دیگر مہمان کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کی مبارکباد دیتا ہوں ہم نشی کے ان تمام عہدیداران و اراکین کو کہ ماہانہ نشست کا اہتمام کرنا اپنے آپ میں جو شعر لانے کے برابر ہے۔ بھیونڈی ایک ایسا شہر ہے الحمدللہ کہ جہاں پر اردو سے متعلق ہمیشہ کچھ نہ کچھ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، کہیں غزل سرائی ہے تو کہیں مشاعرہ ہے، کہیں پر نعت ہیں، کہیں حمد ہیں، لیکن باقاعدگی سے ماہانہ نشست کا اہتمام کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہم نشی کے تمام اراکین کو کہ آپ نے جو ماہانہ نشست کا یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے کہ گزشتہ مہینے آپ نے افسانہ گوئی پر جو نشست رکھی اور اس مرتبہ طنز و مزاح کے اوپر آج ہم سب یہاں پر یکجا ہیں۔ میں مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھیونڈی یقین جانیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ترقی پسند شعراء کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ترقی پسند کی جو تحریک تھی وہ تحریک کی کانفرنس بھی ہمارے بھیونڈی میں منعقد ہوئی تھی، اور اس کانفرنس کے اندر ساحل لدھیانوی، کیفی اعظمی اور مجروح، اس طریقے سے ایسے کتنے اردو کے وہ ستارے یہاں پر موجود تھے کہ جن کی وجہ سے بھیونڈی کا ایک نام تھا یا نام ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے خواجہ حالی کے چشم چراغ خواجہ احمد عباس نے ہمارے اس شہر کو اردو کا جزیرہ کہا۔ اب الحمدللہ اس شہر کے اردو کے اس جزیرے کو الحمدللہ بہت سی تنظیموں نے اس جزیرے کو لہلاتا ہوا کل قرار دے رہا ہے، جس میں ہم نشی بھی ایک اہم نام ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے طنز و مزاح، اردو کی ایک ایسی صنف کہ جس میں طنز کے ساتھ ساتھ طنز برائے تنقید نہیں بلکہ طنز برائے اصلاح ہوتی ہے، جو اس کے تعلق سے یہاں پر آج بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار ہوگی، اور یہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں طنز مزاح ایک ایسی میٹھی دوا ہے جس میں ایک ہنسی کا جو قہقہا ہوتا ہے یا ہنسی کی جو سادگی ہوتی ہے یا مزاح کے ساتھ وہ تمام عوامل شامل ہوتے ہیں جو انسان کی سوچ بدلتے ہیں۔ آج کی محفل طنز و مزاح کی ہم دیکھتے ہیں کہ طنز کے ساتھ طنز اکثر وہ بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان طنز کرتا ہے تو طنز کے ساتھ ایک نشتر جو چھپتا ہے، لیکن اردو ادب کی اس صنف میں طنز میں ایک ایسا نشتر ہے جو قہقہا کی شہد میں بھگو کر لگایا جاتا ہے اور جس سے پڑھنے والا اپنے آپ میں محسوس ہو جاتا ہے، ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اور طنز کے ساتھ ساتھ طنز برائے طنز نہیں بلکہ طنز برائے اصلاح، اور اصلاح بھی اس شرط پر کہ اصلاح میں یہ نہ ہو کہ بھئی صرف اصلاح ہو رہی ہے، بلکہ مسکراتے ہوئے اس تمام عوامل کو اپنے اندر سمو لینا، اس کو سمجھ لینا، اور اس سے دل آزاری نہ ہو بلکہ دل کو سکون پہنچنا، یہ طنز و مزاح کا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے طنز ہے، طنز ہوتا ہے، جیسے اگر میں یہ کہوں آج کہ ہمارے بھیونڈی میں بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پروگرام کرتے ختم ہو جاتا ہے، ماہانہ نشست شروع ہوتی بند ہوتی، ایک طریقے سے طنز ہے، لیکن اگر میں طنز کے ساتھ یہ ملا دوں کہ اس شہر بھیونڈی میں ریختہ بھی ہے، اس شہر بھیونڈی میں ہم نشی بھی ہے، اس شہر بھیونڈی کے اندر بس میں یارانہ ادب بھی ہے، تو ایک طریقے سے مزاح میں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طنز ایک الگ چیز ہے لیکن مزاح کے ساتھ ساتھ ایک مثبت پہلو سمجھ میں آتا ہے۔ طنز مزاح کا یہ اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس میں نامور کتنے ایسی اہم شخصیات ہیں جس نے اردو ادب کی اس صنف کو بام عروج بخشا۔ ابن انشا ہے،
शौकत थानवी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, पतरस बुखारी, अकबर इलाहाबादी, ये ऐसी शख्सियात गुजरी हैं उर्दू की कि जिन्होंने उर्दू को बहुत कुछ दिया, उर्दू से सीखा और लोगों को जो सिखाया, तो उसमें जो मिजाह का जो पहलू था उसको आपने छोड़ा नहीं। तंज और मिजाह का जो एक मिजाज होता है, उस मिजाज में किसी की दिल आजारी या किसी का दिल तोड़ना इन अशखास के नजदीक ये मायने नहीं रखता है, बल्कि सिर्फ ये मायने होता था कि भाई तंज ऐसा हो कि एक मस्बत सोच पैदा हो, तंज ऐसा हो कि जिससे कारी सुनने पर मजबूर हो जाए और कारी उससे बोर ना हो, बल्कि अपने कारी ये समझ के पढ़ता चला जाए कि उसके कहीं ना कहीं उसके जो एहसासात हैं, उसके अंदर जो एक घबराहट है, उसके अंदर एक मायूसी है, अगर उसके अंदर कोई एक तरीके से जरा भी तल्ख है, तो उन तमाम तल्ख को, उस घबराहट को, उस मायूसी को दूर करने की अगर दवा कोई कारी पेश करता है, तो वो तंज मिर्जा के अलावा कोई और नहीं है। तंज मिर्जा में से बहुत से अशखास ने बहुत कुछ लिखा, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बताई, कितने शोरा तंज के नश्तर लोगों पर चलाते चले गए, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इक्तसाबात मैं आपको बताऊंगा, या ऐसा समझने के कुछ नए मैं आपसे मुतारिफ करवाता हूं कि तंज आखिर कैसा होता है और तंज करने वाले लोग कैसे होते हैं और तंज का असर क्या होता है और तंज किस लहजे में, किस अंदाज में किया जाता है। शौकत थानवी ने बड़ा खूबसूरत कहा है किसी मौके पर कि हमारी कौम में पढ़ने का शौक सिर्फ इतना है कि उन्वान देखकर हम मुतमईन हो जाते हैं और आगे नहीं पढ़ते। ये शौकत थानवी का जुमला है कि भाई हमारी जो कौम है ये पढ़ने का शौक इतना रखती है कि उन्वान देखती है फिर किताबें बंद कर देती है। मुश्ताक अहमद यूसुफी के ताल्लुक से हम सब जानते हैं कि आपने तंज मिर्जा के सन्फ को बाम उरूज बख्शा, आपने अपने तमाम जितने भी इक्तसाबात हैं उसमें आपने तंज के ऐसे नश्तर चलाए कि सोचने वाला मजबूर हो जाता है और एक नया मानी मफहूम सामने आता है। मुश्ताक अहमद यूसुफी एक जगह कहते हैं कि खास तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान जो एशियाई औरतें हैं उनके ताल्लुक से वो कहते हैं कि यकीन जानिए कि एशिया की जो औरतें होती हैं वो बड़ी मेहनत कश होती हैं। अब ये तो सिर्फ एक सादा सा जुमला है कि भाई एशिया की औरतें बड़ी मेहनत कश होती है, लेकिन वो आगे फरमाते हैं कि एशिया की औरतें बहुत मेहनत कश होती है। इसका सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि एशिया की औरतें 12% ऐसी हैं जो पैदाइशी खूबसूरत होती है और बाकी अपनी मेहनत से वो मकाम हासिल कर लेती हैं। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी है। मुश्ताक अहमद यूसुफी एक जगह कहते हैं कि इश्क अंधा होता है लेकिन हमसायों की आंख होती है। वो कहते हैं कि भाई इश्क अंधा होता है लेकिन हमसायों की आंख होती है। एक जगह कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल जो होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरने के बाद, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मरने के बाद वारसीन का जो झगड़ा नहीं होता है आपस में हिस्से और जायदाद को लेकर, या उसके बैंक बैलेंस कितना है, क्यों नहीं होता, उसकी वजह यह है कि जो फीस भरी जाती है उसमें तमाम खत्म हो जाता है। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का कमाल है। फिर वो बच्चों से मुतालिक कहते हैं कि जिस बच्चे की जेब से फजूल चीजें अगर नहीं निकले और अगर पैसे निकल रहे हैं तो समझ लो वो बच्चा जिंदगी भर कभी सुकून की नींद नहीं ले सकता। ये मिजाज था तंज़ मज़ा का मुश्ताक अहमद यूसुफी के नजदीक। अब उसके बाद पतरस बुखारी के मज़ामीन हम देखते हैं कि उन्होंने कुत्तों पर किस तरह तंज किया हुआ है। उसके अलावा कल सवेरे आंख जो मेरी खुली, उनके वो मज़ामीन है, उस पर उन्होंने किस तरीके से एक सुबह के उठने के वाकये को किस अंदाज से तंज करके बताया है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। पतरस एक जगह कहते हैं कि अपने हम वो कौम है जो वक्त पर कभी कोई काम नहीं करते। ये पतरस का जुमला है कि हम वो कौम है जो वक्त पर कभी कोई काम नहीं करते लेकिन वक्त पे नाश्ता जरूर करते हैं। ये पतरस बुखारी का कहना है। इब्न इंशा कहते हैं कि काहिल आदमी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता, कि काहिल वो जानता है कि वो काहिली का जो मजा है वो खुद जानता है। एक वर्जिश करने वाला शख्स या सुबह उठकर अपने काम धंधे पे जाने वाला शख्स काहिल इंसान की उस नेमत को कभी नहीं पा सकता। ये पतरस कहते हैं, इब्न इंशा कहते हैं। फिर उसके अलावा हम इब्न इंशा एक जगह कहते हैं कि आज के दौर का इंसान जो होता है पेट से रोटी खा ली है,
जेब से पैसे खाली हैं, उसकी बात जो बसीरत से खाली है, अवाद हकीकत से खाली है, दिल दर्द से खाली है, दिमाग सोच से खाली है, शहर फरजानों से खाली है और जंगल वीरानों से खाली है। ये इस तरीके से अकबर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से शोरा ने तंज मज़ाक के लहजे में ऐसे कितने अशार कहे हैं कि जिनको सुनने के बाद ये महसूस होता है कि भाई एक पुख्तगी आती है, सोच का एक दायरा बढ़ जाता है। अकबर इलाहाबादी ये कहते हैं कि ऐसी किताबें ही काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़कर लड़के बाप को खपती समझते हैं। ये अकबर इलाहाबादी का शेर है। फिर उसके बाद बेपर्दा नजर आई मुझे चंद बीवियां, अकबर जमीन में गहरे कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी अक्ल की मर्दों पे पड़ गया। ये अकबर के वो अशार हैं जो तंज के नश्तर को कहे कहे के चाशनी में डुबोकर मारते हैं और एक तरीके से बावर कराते हैं कि देखिए हमारे समाज का क्या आईना है। दोगलेपन की जब मिसाल दी जाती है तो अकबर कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही नहीं बल्कि हम देखते हैं अगर इसके अलावा ऐसे बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन चूंकि मुंतजमी ने बहुत कम वक्त दिया हुआ है लिहाजा भी बहुत से हमारे बोलने वाले मौजूद है तंज़ मिज़ाक़ पर, कि अल्लामा इकबाल इकबाल तंज़ मिज़ाक़ के शायर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इकबाल ने अपने तंज से इस तरीके के अशार कहे हैं कि सोचने वालों को लगता है कि पर तंज है, लेकिन यकीन जानिए उस तंज के पैराए में एक मुस्बत सोच है। उस तंज के पैराए में ये बावर करवाता है इकबाल के जमाना कैसा जा रहा है, इंसान की अपनी फितरत से मुतालिक हो या इंसान के फर्द से मुतालिक हो, समाज से मुतालिक हो, बुराइयों से मुतालिक हो, मजहब से मुतालिक, इन तमाम बातों को इकबाल के ऐसे बहुत से शोरा ने समेटा है अपने नजदीक और उसको तंज के नश्तर से किस तरह से उजागर किया कि इकबाल कहते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ जमाने में मुसलमान होके और हम खारवे तारीख पुरा होके। यही नहीं बल्कि एक जगह इकबाल कहते हैं कि कौम आखिर क्या चीज है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने दो रकत के इमाम। अब आप सोचें कि भाई इमाम का कितना बड़ा मर्तबा है, इमाम का मर्तबा इतना बड़ा और उस मर्तबे को, इमाम के मर्तबे को अल्लामा इकबाल तंज का नश्तर इस लहजे में उतार रहे हैं कि कौम क्या चीज है और कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने दो रकत के इमाम। कि जो 2 रकत पढ़ने वाला इमाम है वो कौमों की इमामत करने वाला इमाम नहीं है, जो कौमों की इमामत करता है वो अलग इमाम होता है। इकबाल उसको यहां पर समझा रहे हैं एक तंज के लहजे में। उसके बाद अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इस तरह के ऐसे बहुत से अशार इकबाल के नजदीक। बहरहाल यही आप समझ के चले कि तंज मिज़ा जो है उर्दू अदब के एक ऐसे सिन्फ है कि जिसके जरिए इंसान अपनी बात को बहुत आसानी कह सकता है इस लहजे में कि सामने वालों को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, और उसके बाद भी सामने वाला मुस्कुराते मुस्कुराते उस बात से कुछ सबक हासिल कर ले कि तंज मज़ाक अपने खासा होता है। अब जैसे किसी ने कहा कि भाई आज फिर एक भिखारन की गोद भरी है, आज फिर एक भिखारन की गोद भरी है, कौन कहता है मेरे शहर में सखी नहीं। आप सोचें कि भाई सखावत से कहा क्या किसका मामला है, लेकिन ये इस तरह के अशार हैं जो हमारे उर्दू अदब में ऐसे कई नश्तर हैं जो उर्दू अदब से हमको ये सिखाते हैं कि भाई तंज के पैराए में आदमी क्या सीख सकता है, क्या कह सकता है। खामोशी, खामोशी अपने आप में एक इबादत है। हम ये समझते हैं भाई खामोशी अपने आप में एक इबादत है, लेकिन खामोशी एक ऐसी जुबान है जो ना सिर्फ चीखती है, चिल्लाती है, बोलती है, बल्कि लथाड़ती भी है खामोशी। अब वो इस पैराए में आप समझ लें कि अगर महबूबा खामोश हो तो नाराजगी, महबूब खामोश हो तो बुज़दिली, वालिदैन खामोश हो तो मजबूरी, औलाद अगर खामोश हो तो सादतमंदी, इंसान खामोश हो तो बेबसी, इंसानियत खामोश हो तो एक इंसान अगर खामोश हो तो बेबस, और अगर इंसानियत खामोश हो तो बेबसी, और कौम खामोश हो तो मजलूमियत, और हुक्मरान खामोश हो तो सियासत। तो ये खामोशी अपने आप में एक सिक्का राजुल वक्त है जो जब चलती है या तो किसको खरीद देती है या तो किसको बेच देती है। बहरहाल ये आज की जो महफिल है ये तंज मिज़ा के पैराहे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार फिर हम नशी के तमाम ओहदेदारान व अराकीन को मुबारकबाद देता हूं इस सोच के साथ
کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی طنز کرے کہ بھائی اردو کی ماہانہ محفل منعقد نہیں کی جا سکتی، نہیں ہوگی، یا یہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کہاں پر جگہ ہے، یا ایسے بہت سے معاملات ہیں۔ لیکن دیکھیے ابھی جلدی میں نے اردو ٹائمز میں انقلاب میں ایک مراسلہ چھوٹا دیکھا، مالیگاؤں میں 239 ماہانہ نشست تھی ان کی، ابھی جلدی 2-3 دن قبل میں انقلاب میں تھا۔ تو مالیگاؤں میں ایسے بہت سے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، چنندہ لوگ بیٹھ کر وہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی کس طرح ہم کو پروگرام کرنا ہے۔ اردو کی بہت سی اصناف پر باتیں ہوتی ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ادھر مشاعرے ہیں لیکن اس کا معیار گھٹ رہا ہے، ہمارے ادھر اخبار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلہ کہیں نہ کہیں اس لیے بلند ہوتا ہے کہ ایسے نوجوان بھیونڈی میں الحمدللہ موجود ہیں جو ایک اردو کو لے کر چل رہے ہیں، اردو کا کارواں جو آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے بہت سی تنظیمیں ہیں جو اردو کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ میں اپنی بات اس شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم نشی کے نظر میں کروں یہ شعر کہ اپنی بات کو کہتے رہنا، طنز جہاں کے سہتے رہنا، اپنی بات کو کہتے رہنا، طنز جہاں کے سہتے رہنا، روک سکا ہے کون ہوا کو، تم ہو دریا کہتے رہنا۔ السلام علیکم۔